In last class also we have discussed about the different types of persons, right? An individual, Hindu undivided family, company, a firm, an association of person, body of individual, an artificial judicial person, and any local authority. All these are included in the definition of person. Okay, all these are persons. So what actually the person means? So we will study कि एसएससी कौन होता है. एसएससी वो लोग हैं जो कि 8% में लाई करते हैं and they have to pay the tax. तो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 था उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो पर्सन्स का नाम दिया गया they were like individuals have. So we have discussed about individual, Hindu undivided family, company, firm. Now tell me what is association of person? Association of person क्या है? कौन होगा? Group of person, individual, Hindu, undivided family, company, all are together called association of. All together the associations of person will be the association means all the persons, that is either individual or huff or a company, a firm, any of them combined together to form an association with same objective, that is an association of person. And body of individual is only individual. If any individual is only making a group and forming a not exactly a partnership but two individual persons coming together with same objective, so it will be a body of individual. Okay, any artificial judicial person, that is bar council, ICAI, university. ICAI is basically Institute of Chartered Accountant of India, है ना? Or any such institutes, either ICSI or anyone, any universities, all are artificial judicial persons, and any local authority. All the local authority will be a part of it. Okay, तो ये persons clear है सबको कि persons कौन होते हैं? Who are the person? Now answer this following. What, in which person will they lie? The first one is Kanpur University. Kanpur University will be under which person? Sir, association में. Anyone else? It is clearly mentioned here, university, right? Yes, sir. है ना? It will be a artificial judicial person, है ना? So Kanpur University will be the artificial juridical person. Allahabad Bank, what will be? Allahabad Bank will be which person? Raise your hands. Whoever knows the answer or want to tell the answer, please raise your hand. I will ask them. So Allahabad Bank will come under which person? Sir, judicials. No. Company. Yes. Allahabad Bank will be a company. It will come under company because it is always a banks and all are always a company. It is Allahabad Limited and all. So it will be a company. Berger Paints Private Limited. Sir, company. It is a company, private limited. So Municipal Corporation of Agra. Municipal corporations will come under Local authority. local authority. Local authorities क्या होता है? Any of the municipal corporations or semi government, basically what we say semi government. So local authorities are semi governments. फिर SBPD publication. SBPD publication will be a
firm. ठीक है, Firm. SBPD publication will be a firm. So we have to remember this. Okay. Now next is Shri Krishna Enterprises consisting S and K partners. There are two partners, S and K, of Shri Krishna Enterprises. So it will be a Firm. it will be a firm. Okay. Then a joint Hindu family consisting of Mr. M, Mrs. M, and their son P. So this is clearly mentioned only. Okay, there is a joint Hindu family. So joint Hindu family business, है ना, Hindu undivided family business. And last one, A and B, who are legal heirs of C. C died in 1988, and A and B carry on his business without entering into partnership. So, which type of business will it be? An individual. Association of person. Two persons are there ना, individual में तो एक होता है, यहाँ पे दो person है ना, A and B carry on business without entering into partnership. So वो क्या हो जाएगा? Association of person. Clear है? Yes, sir. चलो, now the next point comes is about assessee. Who is assessee? Assessee किसको बोलेंगे? तो all the persons who are liable to pay tax will be assessee. All the persons who are liable to pay tax will be assessee. So following are included in assessee. किसको किसको we include in assessee? The person who is liable to pay tax. ठीक है? The person who is liable to penalty and interest along with tax. जो भी person tax pay करने के liable है, they will be the assessee. If any person who has to pay the penalty and interest along with the tax because of late payment or any of the conditions, so they will also become assessee. Then comes deemed assessee. Deemed assessee means, deemed का मतलब मान लेना. कभी कभी किसी किसी situations में we assume a person to be an assessee. Means he is not the actual owner of the property, but still he will be paying tax for that property. तो उसको बोलते हैं deemed assessee. We will discuss it afterwards. The person who is deemed assessee in default. Assessee in default. In default का means क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? In default का मतलब है कि if the person makes any kind of default in filing taxations or anything, तो उसको बोलते हैं assessee in default. ठीक है? तो assessee in default जो person होगा वो भी assessee के criteria में आएगा. Every person on whom any proceeding is related to fringe benefit is started. Fringe benefits अगर किसी भी persons को मिल रहा है, ठीक है, उससे regarding कुछ भी proceedings हो रहा है, तो वो भी assessee में include होगा. और the person on whom the proceedings of assessment have been started is an assessee. और कोई भी person जिसमें assessee का proceedings start हो गया है, assessment start हो गया है, वो भी क्या कहलाएंगे? Assessee कहलाएंगे. So there are many types of person who can be assessee. Okay. So we will be discussing deemed assessee. यहाँ पे आया था ना deemed assessee. Deemed assessee is also part of assessee. So deemed assessee क्या हो जाएगा? It is a liability to pay income tax on income of another person. Deemed का मतलब अभी बताए थे, मान लेना. Deemed मतलब क्या हो गया? Assume कर लेना कि he has to pay tax. अब suppose करो क्या होता है कि there is a parent, ठीक है, one father is there, जो इनका डेथ हो गया. अब फादर का डेथ होने के बाद वो प्रॉपर्टी किसको चला जाएगा? उनके लीगल हियर्स को. दैट इज इधर हिज वाइफ और सन और डॉटर. ठीक है, तो जब वो प्रॉपर्टी उनके पास गया तो अभी क्या नाम चेंज हो गया प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी का उन लोगों को रियल ओनर बना दिया गया है? नहीं, उसमें टाइम लगता है प्रोसेस में. ठीक है, बट टैक्स जब भरने का बारी आएगा ना, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली तो आप ही को मिलना है, so you will be paying the tax.
आप भले ही इसके एक्चुअल ओनर नहीं हो, बट यू विल हैव टू पे द टैक्स, बिकॉज जो ओनर थे वो तो डेथ हो गया, उनका तो डेथ हो गया, ही कांट नाउ पे द टैक्स। सो उस केस में उनको क्या कर लिया गया, डीम्ड एसएससी मान लिया गया। वी टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज someone transfers any of the property to avoid tax, ठीक है, टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। सो इफ one person transfer a property to another person to avoid tax, income tax officer को अगर पता चलेगा कि he is trying to avoid a tax, तो वो क्या बोलेगा कि टैक्स किसको भरना है, जो ट्रांसफर किया था उसको या जिसको मिला है उसको? जो ट्रांसफर किया है, जो ट्रांसफर जिसको किया मिला है है। उसको नहीं, जो ट्रांसफर किया है वो टैक्स भरेगा, जिसको मिला है वो नहीं भरेगा। अगर अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर किया गया था तब, अवॉइड करने के लिए मतलब लास्ट क्लास में शायद ये डिस्कस किए थे, सपोज करो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी को हम 10 लाख में दे दिए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आके ये पूछेगा ना, भाई 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आप 10 लाख में कैसे ट्रांसफर किए, ऐसी क्या जरूरत थी? अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, इसका मतलब हम टैक्स अवॉइड करने के लिए किए थे, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी पे टैक्स उसी को देना होगा जिसका पहले वो एक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसको डीम्ड एसेसी कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वही उसका एक्चुअल ओनर है, और इनकम टैक्स बोलेगी कि आप ही को इसका टैक्स देना है क्योंकि आप टैक्स अवॉइड करने के लिए इसको ट्रांसफर किए थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर तो उसी से भरवाएगी, अब नेक्स्ट ईयर से भले ही चेंज कर दे, उस पर्टिकुलर ईयर में वही टैक्स भरेगा। ठीक है, समझ में आ गया? डीम्ड एसेसी, डीम्ड का मतलब अज्यूम कर लेना, द पर्सन हु इज अज्यूम्ड टू पे टैक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज assessee in default. Now assessee in default कौन होगा? Any person because of whom income tax department suffers a loss of revenue, जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं assessee in default। ठीक है, टीडीएस कभी सुने हो? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देयर इज अ वर्ड टीडीएस, ठीक है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि वेन एवर द इनकम इज गोइंग टू कम फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एनी ऑफ द कंपनीज, तो वहां पे टैक्स पहले ही कट के हम लोग को मिलता है, टीडीएस कट के ही हम लोग को मिलता है वो पैसा। फॉर एग्जाम्पल से केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? एवरीवन मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। उसमें जो भी प्राइसेस जीता जाता है ना अबाउट 10,000, उसमें टैक्स काट के दिया जाता है, टीडीएस कट के मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 30% ऑफ द टैक्स कट जाता है। तो उसी तरीके से जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा होता है तो उसको टैक्स काट करके ही सैलरी देना है। ठीक है, अब कोई एम्प्लॉयर टैक्स काटना भूल गया, ठीक है, टीडीएस नहीं काटा, तो उस केस में लॉस किसको हुआ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। किसके वजह से हुआ? एम्प्लॉयर के वजह से, बिकॉज एम्प्लॉयर को टैक्स काटना था, एम्प्लॉयर टैक्स नहीं काटा, तो गलती किसका है? एम्प्लॉयर का कि एम्प्लॉय का? एम्प्लॉयर का। In that case, income tax officer will say कि who is assessing in default? Employer. So who will be paying the tax? Employer. तो employer को क्या मान लिया जाता है? Assessee in default, कि उसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ, तो he will be paying tax now on behalf of employee because उसको टैक्स काटना था और वो नहीं काटा। Got the point? Yes, sir. Now one word is one word we used here, मतलब every person on whom any proceedings related to fringe benefit, ठीक है, fringe benefit is means extra benefit that we get from salary, salary के अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम लोग को मिलता है, एम्प्लॉइज को मिलता है बेसिकली एम्प्लॉयर के द्वारा, तो दे आर कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप, और रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर दे देता है रहने के लिए, गाड़ी दे देता है, लैपटॉप दे देता है यूज करने के लिए, तो ऑल दीज बेनिफिट्स आर वी आर गेटिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर इन एडिशन टू द सैलरी, सो दे आर कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, उसको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, और उस पे भी टैक्स इंपोज किया जाता है, तो द पर्सन हु इज रिसीविंग द फ्रिंज बेनिफिट्स विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। ठीक है, तो इसी के लिए उस फ्रिंज बेनिफिट्स पे भी टैक्स लगता है। गॉट इट?
तो ये सारा क्लियर हो गया कि हु इज द असेसी, व्हाट इज डीम्ड असेसी, व्हाट इज असेसी इन डिफॉल्ट एंड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स. यस गोविंद. चलो ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सर डीम्ड एसएससी मतलब? डीम्ड मतलब अज्यूम कर लेना. वी अज्यूम अ पर्सन टू बी एन एसएससी. ठीक है, उसको हम लोग Okay. बोलते हैं डीम्ड एसएससी. चलो नेक्स्ट वन इज इनकम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इनकम एज पर इनकम टैक्स? तो सी देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इनकम. इनकम का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. इनकम कहीं पे समझाया नहीं है कि इनकम क्या होता है, या इनकम का कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ भी नहीं. बस वी इंक्लूड सर्टेन थिंग्स इन इनकम. सो आई हैव रिटन ओनली सम ऑफ द इनकम्स ओवर हियर. इसके अलावा भी काफी सारे इनकम्स होते हैं जो कि हम लोग को समझना पड़ेगा. ठीक है, so what are the incomes basically? So see, there is no exact definition of income but includes profit and gains. ठीक है, any profit and gains from the business will be income. Dividend, you all must be knowing about dividend. What is dividend? शेयर होल्डर्स को जो Yes, sir. इंटरेस्ट मिलती है. It is a profit that is distributed among the shareholders of the company. है ना, profit of the company जिसको shareholders के बीच में distribute किया जाता है, dividend. तो that is also an income. फिर income from mutual funds. अगर म्यूचुअल फंड से किसी भी तरीके का इनकम आ रहा है, कोई इनकम आ रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. देन कैपिटल गेन. कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है ना, ये एक चैप्टर है कैपिटल गेन, वी विल बी स्टडीइंग इट लेटर ऑन. बट बेसिकली कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर सेलिंग एनी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट होता है बेचने पे या लॉस होता है बेचने पे, दैट इज इंक्लूडेड इन इनकम टैक्स. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, तो इट विल बी अ कैपिटल गेन फॉर मी. ठीक है, उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स. इफ एनी बैड डेट हैपेंड, देन उसमें जो भी रिकवरी होगा तो दैट विल बी इनकम फॉर अस. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा. Any income that we receive from lotteries, crossword puzzle, card games, all of these are income. ये हम लोग के लिए इनकम है, भले ही कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, इट विल नॉट मैटर मच. ठीक है, बट देयर शुड बी कि हाँ पैसा मेरे पास आना चाहिए. इफ आई एम रिसीविंग मनी डायरेक्टली, तो दैट विल बी इनकम फॉर मी. फिर अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली क्या होता है ना, कि कीमैन का मतलब क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट पर्संस जो कि कंपनीज में होते हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सीईओ, सीएफओ, सीए, दे आर द प्रोफेशनल्स एंड दे आर द इंपॉर्टेंट पर्संस इन अ कंपनी. सो कंपनीज उन लोग का ना इंश्योरेंस करवा के रखती है. तो अगर उन लोग के इंश्योरेंस में से कोई भी पैसा कंपनी इज रिसीविंग, so that will be a keyman insurance policy. So amount received under keyman insurance policy. Keyman means any important persons of the company, that is either CEO, CFO, owners, directors of the company's managements. So all comes under keyman insurance policy. Okay, so these are the income, and there are a lot of income. Income from salary, income from rent, all those comes under income, which I have not written over here. But income does not include, income include किसको नहीं करता है? LPG subsidy or any welfare subsidy received by individuals. Okay, any of the subsidies that is given by the government, like LPG subsidies, welfare subsidies, or क्या बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन सब सस्ता देता है करके, है ना, राशन कार्ड्स में लोगों को राशन सस्ता देता है करता है,
तो ऑल दिस आर नॉट इनकम फॉर मी, ये इनकम नहीं है, ये गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग इनकम का नाम नहीं दे सकते। ओके, उसके बाद स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट from university or any charitable institution, any scholarship that we receive na, it is also not income, because that amount of money is directly going to the college, it is not coming to me ki I can use it anywhere. Just like for example, Bihar government is providing a student credit card. Okay, so when we apply for a student credit card, money comes in my account or directly into the college's account? कॉलेज के अकाउंट में। कॉलेज डायरेक्ट अकाउंट। कॉलेज के अकाउंट में। मेरे को वहाँ स्कॉलरशिप टाइप का मिला, मेरे को वहां से लोन मिला, पैसा मिला, बट मेरे को डायरेक्टली नहीं मिला। मेरे को पढ़ने के लिए पैसा मिला है जो कि डायरेक्टली उसको पे किया गया, तो वो मेरे लिए इनकम नहीं ना होगा। So that is not an income for me. Got the point? Now further we will discuss about features of income. What are the features of income? What we will be including in income? So it can be monetary or non-monetary. मतलब income can be a monetary or it can be a non-monetary. Now what does non-monetary income means? Can anyone explain this? Monetary is clear that we are getting a salary or amount of money for paying rent or something. But what is non-monetary? सर Means जिसका कोई promotion. अमाउंट का लेखा जोखा नहीं होता है, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन में से उसका जो भी ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड नहीं होता उसमें। नहीं, रिकॉर्ड तो होता है, इसको सैलरी में इंक्लूड भी किया जाता है। नॉन मॉनेटरी कहने का मतलब हो गया काइंड। देखो अब यहाँ पे बात समझो कि क्या होता है ना कि दो तरीके से मेरे को मिल सकता है एम्प्लॉयर से। ठीक है, एक सपोज करो एक जगह हम काम करने गए, हमको वहां पर सैलरी तो दे रहा है, सैलरी के साथ ना कुछ पैसा दे दिया कि जाओ तुम ये लैपटॉप खरीद के ले आओ, या मेरे को सपोज करो 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया फॉर बाइंग अ लैपटॉप, फॉर परचेजिंग अ लैपटॉप, तो वो तो पैसा दे दिया लैपटॉप खरीदने के लिए। ठीक है, बट किसी किसी जगह पे जाएंगे ना, किसी किसी कंपनी में, तो वहां सैलरी तो दे रहा है, बट सैलरी के अलावा मेरे को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया लैपटॉप खरीदने के लिए, वो कंपनी ही मेरे को लैपटॉप दे दिया, पैसा नहीं दिया, वो डायरेक्ट क्या दिया, लैपटॉप ही दे दिया, काइंड में दे दिया, तो वो नॉन मॉनेटरी हुआ ना। यस सर। मतलब मेरे पास पैसा नहीं आया, काइंड आया, समझे। बहुत जगह होता है कि मेरे को घर मतलब रहने के लिए रेंट का पैसा देता है, बहुत जगह होता है कि एम्प्लॉयर खुद ही घर प्रोवाइड कर देता है कि जाओ घर पे रहो। जैसे बैंक में देखते होगे ना, बैंक के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उन लोग को एक बैंक क्वार्टर मिलता है, बैंक के द्वारा क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, तो वो घर प्रोवाइड कर दिया, तो वो नॉन मॉनेटरी हुआ। समझ में आया मॉनेटरी एंड और नॉन मॉनेटरी? तो इनकम मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नाउ इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, इनकम बाहर से आना चाहिए। मतलब अगर पॉकेट मनी तुमको मिल रहा है अपने घर से, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो इनकम है, नहीं। इनकम हमेशा कोई काम करके, कोई बाहर से या किसी के थ्रू आना चाहिए। हाँ, अगर हम घर के ही किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है और हमको वहां सैलरी मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं और सैलरी मिल रहा है, तो वो इनकम होगा। बट जस्ट गेटिंग अ पॉकेट मनी फ्रॉम अ पेरेंट, तो वो मेरे लिए इनकम नहीं है। लीगल एंड इलीगल incomes are included in income, whether it is a legal income or it is illegal income, all will be the income, मतलब सबको इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, all will be taxed। अब ये बोलोगे कि इलीगल इनकम पे टैक्स कैसे कोई देगा? अगर इलीगल इनकम कमा रहा है, टैक्स देने जाएगा, तब तो वो तो पकड़ा जाएगा। यस सर। तो ये क्यों लिखा है कि लीगल एंड इलीगल इनकम्स आर इंक्लूडेड इन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट? देखो यहाँ वही है ना कि जो इलीगल इनकम्स होता है, जब वो पकड़ाया तभी ना हम लोग को पता चला कि वहाँ इलीगल इनकम था, तो उस पे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, वेदर इट बी इलीगल इनकम, उस पर फिर टैक्स जब वो पकड़ाएगा, जब वो इलीगल है पता चल गया, तो उस पर उससे टैक्स लिया जाएगा, उससे पैसा लिया जाएगा। ठीक है, सो लीगल एंड इलीगल इनकम्स आर इंक्लूडेड इन इनकम। देन कम्स रेगुलर एंड इरेगुलर इनकम। व्हाट इज रेगुलर एंड इरेगुलर? रेगुलर इनकम जो कंटिन्यूअस मिलता है, जैसे कि सैलरी, इफ आई एम गेटिंग अ सैलरी, आई एम गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, so it is a regular income for me. But Yes, sir. I have invested some of the money somewhere or
कहीं से अचानक से कभी कभी मेरे को कहीं से पैसा आ गया, तो दैट इज इररेगुलर इनकम। ठीक है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इररेगुलर इनकम। सपोज करो कोई और या कोई यूनिवर्सिटी का भी बुलाएगा कि पेपर चेक कर देने के लिए या करके या कुछ कर देने, तो हम किसी और कॉलेज का काम करने के लिए एक दिन के लिए गए और हमको पैसा मिल गया, तो वो कभी कभी मिला ना, कभी गए, रेगुलर नहीं है, तो उस तरह के इनकम को इररेगुलर इनकम बोलेंगे। फिर इनकम फ्रॉम डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, व्हाट डज दैट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मीन्स? अ प्रॉपर्टी जिसपे की कोर्ट केस चल रहा है ना, any property on whom the court case is going on is a disputed property. अब being a disputed property, उसमें इनकम आ रहा होगा किसी ना तो किसी को, तो उस पे टैक्स लगेगा। और टैक्स देगा कौन? जिसको इनकम मिल रहा होगा। सपोज करो कि दो भाई है, दोनों भाई आपस में लड़ लिया किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, और वो प्रॉपर्टी हो गया डिस्प्यूटेड, कोर्ट में केस हो गया। नाउ any one of the brother would be receiving the money of that disputed property either by the rent or something. तो जिसके पास भी वो पैसा आ रहा है ना, उसको उस disputed property का टैक्स भरना पड़ेगा, he will have to pay. Okay, फिर received or accrued both are taxable income, whether it is the income is received or whether the income is accrued, both are taxable. accrued का मतलब बकाया। अक्रूड का मतलब बकाया, एंड रिसीव्ड का मतलब रिसीव। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमको मिला है या नहीं मिला है, इससे कोई मतलब नहीं है, समय हो गया है ना मिलने का, तो यू हैव टू पे द टैक्स। और रिसीव्ड इसीलिए पहले लिख दिया कि अगर एडवांस में भी मिला है, तो एडवांस में जब भी मिल गया ना टैक्स, तो यू मतलब सॉरी इनकम, तो यू विल हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट इनकम। मतलब पैसा आ गया या अक्रू हो गया, जो भी पहले हो गया, तुमको उस पर क्या कर देना है, टैक्स भर देना है, टैक्स दे देना है। ठीक है, सेविंग ऑफ फैमिली इज नॉट एन इनकम। इफ एनी फैमिली सेव्स मनी, है ना, सेविंग अकाउंट में रखे हुए या कुछ भी किए हुए, तो वो इनकम नहीं है, उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। इनफैक्ट इस पे भी नहीं लगता। इफ एनी ऑफ द member of the family is earning money somewhere and he is transferring his income to his parents, तो वो पेरेंट्स के लिए इनकम नहीं है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, बाहर जाके कोई कमा रहा है, उसके पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे, सपोज दिल्ली में काम करने गए, पेरेंट्स पटना में रह रहे हैं, सो इफ दिल्ली से हम पैसा पटना में ट्रांसफर करेंगे पेरेंट्स के पास, तो वो इनकम नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, पैसा कमाया हुआ पैसा थोड़ी है वो। सर तो जो बैंक में पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, उस पे भी टैक्स नहीं होगा? नहीं, उस पे भी टैक्स नहीं होता है, उस सब पे तो टैक्स दे चुके हैं ना। आई हैव ऑलरेडी पेड टैक्स। जो इनकम आया होगा मेरे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है पैसा, जहां से इनकम आया होगा वहां पे तो टैक्स दे ही चुके हैं। तो सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखने का पैसा नहीं होता है ना, किसी भी चीज पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। नाउ कम्स कैजुअल इनकम, कि कैजुअल इनकम क्या होता है या कैजुअल इनकम किसको बोलते हैं। तो इफ एन असेसी by chance or without any expectations or accidentally gets any income which is of non-recurring nature is called casual income. लॉटरी टिकट सब लोग खरीदते होंगे, हाँ माही, एनी क्वेश्चन? तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर हैं जो टीचर है हाई स्कूल में, तो उनकी अर्निंग काफी हाई है, तो वो क्या करते हैं, अपने लड़के को और लड़की को पैसे भेजते रहते हैं कि, और ये बोलते हैं कि हमारा टैक्स बच जाएगा, तो क्या इससे उनका टैक्स बच जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे बचेगा उसमें टैक्स? हाँ, वो होगा जब टोटल इनकम, जब देखो इसमें क्या होता है ना, जो सैलरीज जो मिलते हैं ना जनरली, जो गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, तो वहां पे जो सैलरी मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली टीडीएस मैक्सिमम जगह टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, पहले ही टैक्स कट के मिलती है। और बाई चांस अगर टैक्स कट के नहीं भी मिल रहा हो और बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है ना, सो इवन इफ इट्स ट्रांसफर इट, उसमें टैक्स नहीं बचेगा, टैक्स तो उसमें लगेगा, बिकॉज वी हैव अ प्रूफ ना कि हाँ इतना पैसा आया था। इफ यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ मनी, यू ट्रांसफर्ड इट और यू डिडंट ट्रांसफर इट, इससे मतलब नहीं है, आपको तो उसका टैक्स देना ही पड़ेगा।
एंड अगर आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, ओके है ना। सो इट इज। तो अब जैसे ये इसमें बता रहे थे ना कैजुअल इनकम, एवरीवन मस्ट हैव परचेज्ड लॉटरी टिकट्स समवेयर समटाइम, है ना, कभी ना तो कभी खरीदे ही होगी लॉटरी टिकट्स। तो हम लोग जब लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं ना तो सिर्फ खरीद लेते हैं कि अच्छा 10 रुपए 20 रुपए का लॉटरी टिकट है, खरीद लेते हैं, मिलेगा तो नहीं, हम लोग ये अज्यूम करके रखते हैं कि नहीं मिलेगा, मिल गया तो देखा जाएगा। तो उस केस में क्या है कि कभी अगर अचानक से लॉटरी का पैसा मिल गया तो वो अनएक्सपेक्टेड था, बाई चांस मिल गया, तो वो कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम जो कभी कभार हो जाए, अचानक से हो जाए, जिसका हमको कोई भरोसा नहीं था कि वो इनकम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में विनिंग ऑफ फ्रॉम अ लॉटरी, बेटिंग एक्सेट्रा। गॉट इट? किसी को और कुछ क्वेश्चन से कुछ पूछना है? नो सर। नहीं है। नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ इज ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम, देयर इज अ 5 हेड्स अंडर टोटल इनकम, ठीक है। डायरेक्ट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें 5 मेजर हेड्स आते हैं इनकम टैक्स में। क्या 5 हेड्स आते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, income from capital gain, income from other sources. See, all these are the 5 chapters that we will be discussing it, ठीक है। ये पांचों चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। So क्या होता है ये इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिकली, तो जो सैलरीज हमको मिल रहा है कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं तो दैट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ? एनी इनकम that we are receiving by the means of rent, okay। अगर मेरे पास 2-3 घर है, हम एक घर में खुद रह रहे हैं, 2 घर को हम रेंट पे लगाए हुए हैं, तो रेंट का पैसा आ रहा है ना, तो दैट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एचपी। देन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस या प्रोफेशन हम चला रहे हैं, अगर हम खुद का है, मेरा यहाँ पे याद रखना प्रोफेशन मतलब ये मत समझना कि इफ आई एम एम्प्लॉयड समवेयर, इफ आई एम एम्प्लॉयड समवेयर तो वो सैलरी में चला जाएगा। यहाँ प्रोफेशन मतलब खुद का, जैसे डॉक्टर्स के खुद के क्लिनिक्स होते हैं, टीचर्स के खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो चला रहे होते हैं जिनका होता है, या जो डॉक्टर्स है प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, तो वो लोग का प्रोफेशन है, बिजनेस है। तो उसमें से अगर कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं ना तो दैट विल कम अंडर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अभी बताए थे, कैपिटल गेन कि एनी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम लोग सेल करते हैं उसमें जो हम लोग को प्रॉफिट होता है तो दैट इज कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मींस इन चारों को छोड़ के कोई और इनकम है जो इन चारों में नहीं जाना है, इन चारों में नहीं जाएगा, दैट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम गेम्स, है ना, और इनकम ऑफ एमएलए एमपी, ऑल विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। एमएलए एमपी जो होते हैं ना उन लोग का जो इनकम होता है, उनको जो सैलरी मिलता है वो अदर सोर्सेज में आता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है। वो हम लोग डिस्कस जब सैलरी पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इन जब पांचों चीजों को हम लोग ऐड कर लेंगे, पांचों चीजों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। पर ये भी याद रखना ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, अभी भी ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं निकलेगा कि इस पे टैक्स देना है। टैक्स लगता है मेरे टोटल इनकम पे, जो मेरा टोटल इनकम होगा उस पे टैक्स लगेगा। अब ये टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो क्रॉस टोटल इनकम आता है ना उसमें से कुछ डिडक्शंस, वी गेट सम डिडक्शंस फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। वहां पे एक फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें डिडक्शंस होगा फ्रॉम सेक्शन 80C से लेके 80U तक। मतलब बहुत लोग को देखते होंगे ना, मार्च का समय आता है ना तो दे स्टार्ट परचेसिंग इंश्योरेंसेस, ठीक है, बहुत सारे फंड्स में पैसा लगाने लगते हैं। ये क्यों करते हैं? ये होता है टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। अगर टैक्स हमको बचाना है, टैक्स हमको सेव करना है, तो हम इंश्योरेंस खरीदेंगे, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। घर वर खरीदते हैं, वहां पे भी मेरा कुछ टैक्स बचता है, कुछ पैसा बचता है।
तो वो सब किस में आ जाएगा, डिडक्शंस में। तो वो सारे डिडक्शंस मेरे टैक्स का जो अमाउंट है ना उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग किसको माइनस करते हैं, तो ये तुम लोग ना लिख लेना, हम इसमें नहीं मेंशन किए थे, तो तुम लोग इसको लिख लेना पहले कि ग्रॉस टोटल इनकम, ये पांचों को हट के तो हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। इसमें से हम लोग लेस किसको कर देंगे, माइनस किसको कर देंगे, डिडक्शन। डिडक्शन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो डिडक्शन को माइनस करते ही हम लोग का क्या निकल जाता है, वो टोटल इनकम। टोटल इनकम जो टैक्सेबल होता है। फिर उस पे हम लोग टैक्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर एक बार और बता दीजिएगा। देखो क्या बोले कि ये जो पांचों हेड है, ये पांचों हेड क्लियर हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अब क्या है ना कि इन पांचों को जोड़े तो ग्रॉस टोटल इनकम निकला। नाउ इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शंस को। डिडक्शंस मतलब कुछ छूट दिए जाते हैं फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो बताया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि किस किस चीज पे हम लोग को डिडक्शंस मिलेगा, छूट मिलेगा। तो उस डिडक्शंस को हम लोग इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम लोग का निकल जाता है टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम जिसपे कि हम लोग टैक्स पे करना होता है, जिसपे हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगर लास्ट क्लास तुम लोग पढ़े हो या ठीक से रिवीजन किए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। देखो एक क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन।